સૌને નમસ્કાર. આજની 1 કલાક માટે ઓરિએન્ટેશન વિષય અથવા એક નાની કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો જેમાં આપ સૌ પરિચિત છો. આપણે વાત પણ કરી છે ગત વીકે પત્ર દ્વારા સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર કેવી રીતે એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું થશે, કેવી રીતે એના સ્ટેપ ભરવાના છે, એ થોડું માર્ગદર્શન આપને આપવામાં આવે અને આપ પણ થોડા પરિચિત થાવ એ દિશાના પ્રયાસ રૂપે આજે એક વિષયનું આયોજન કર્યું છે. તે બદલ સમગ્ર શિક્ષા કચેરી વતી આપ સર્વેને આવકારીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. આજની મીટિંગમાં માનનીય એએસપીડી મેડમ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. સાથે જ આપણા સમગ્ર શિક્ષાના સચિવ સાહેબ છે આદરણીય ત્રિવેદી સાહેબ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. આજના વિષયની શુભ શરૂઆત માનનીય ત્રિવેદી સાહેબથી શરૂઆત કરીએ તો સાહેબને વિનંતી કરીએ કે આપણને આજના સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંતર્ગત માર્ગદર્શન પાઠવે. માનનીય સાહેબ. આજની આ શાળા સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર 2022 વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત સમગ્ર શિક્ષાના એએસપીડી મેડમ શ્રી, અમારા જિલ્લા રાજ્ય કક્ષાના સર્વ અધિકારીશ્રીઓ, આપ જિલ્લા કક્ષાએ મદદનીશ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર QEM, ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ ઇજનેરશ્રી તેમજ સર્વ બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર્સ મિત્રો. તો આજની આ જે મીટિંગ છે, જેમ દર વર્ષે આપણે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંતર્ગત જે આપણે કામગીરી કરીએ છીએ એ માટેની આજની આ વિડીયો કોન્ફરન્સ છે. આમ તો આપ એનાથી પરિચિત છો અને આપણા રાજ્યમાં સિવિલ વિભાગ અને આપ સૌના સહયોગથી આપણે સુંદર કામગીરી મિત્રો એમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ. ગયા વખતે પણ એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન હતી, આ વખતે પણ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન દ્વારા આ કામગીરી કરવાની છે. આ વખતે કોવિડ રિલેટેડ અમુક ઇન્ડિકેટર્સ છે એ સાથે સ્વચ્છતાની સાથે સાથે એનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એની ડિટેલ વિગતો છે આપને અહીંથી બતાવવામાં આવશે. પણ સમય મર્યાદામાં મિત્રો જે પ્રમાણે અહીંથી સૂચના આપવામાં આવે એ અંતર્ગત કાર્યવાહી થઈ જોવા માટે વિનંતી છે. કારણ કે ભારત સરકારના પોર્ટલ ઉપર મિત્રો આપણે આ કામગીરી કરવાની છે. એટલે અહીંથી માનનીય એસપીડી મેડમ શ્રીને અને આપણા માનનીય સચિવ શ્રી ડોક્ટર વિનોદ રાવ સાહેબને દર અઠવાડિયામાં જે કંઈ આની પ્રોગ્રેસ છે એ પ્રોગ્રેસ છે બતાવવામાં મિત્રો આવતી હોય છે. એટલે જેથી આપણું ચિત્ર સારું દેખાય એ માટે આપણે સાથે મળીને બધા પ્રયત્ન કરીશું. આજે આપ લોકોને આખી ડિટેલ્સ કઈ રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે, દરેક બાબતો જે છે એની અહીંથી આપને બતાવવામાં આવશે. સાથે સાથે મિત્રો બધા જ આચાર્ય મિત્રોને અને જે કામ કરતા હોય શિક્ષક મિત્રોને પણ આ અંગે ડિટેલ તાલીમ મળી શકે એના માટે સંભવિત શનિવારે આપણે બાયસેગના માધ્યમથી પણ આપણે કરીશું, જેથી દરેક આચાર્ય અને જે આ કામગીરી જે શિક્ષકે કરવાની છે એમને પણ કઈ રીતે એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે, માહિતી કઈ રીતે એમાં દાખલ કરવાની છે, કોઈ પણ જગ્યાએ કઈ પણ એને કન્ફ્યુઝન હોય તો કોનો સંપર્ક કરવો, અને દરેક બાબત માટે આપણે લોકોને પણ આપને તો આજે ગાઈડ કરવામાં આવશે જ, પણ શનિવારે આપણે શિક્ષક મિત્રોને અને આચાર્ય મિત્રોને પણ બાયસેગના માધ્યમથી, કારણ કે મોટી સંખ્યા હોય એટલે આપણે વન વે કોમ્યુનિકેશનથી જે આપણે કરવું પડશે, તો બાયસેગના માધ્યમથી પણ આપણે એમને માર્ગદર્શન આપીશું. પણ મુખ્ય બાબત છે કે સમય મર્યાદામાં આ કામગીરી થાય એ જોવા માટે સર્વને વિનંતી છે. આપને એ અંતર્ગત કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો જ્યારે અહીંથી આપને તાલીમ કે પ્રેઝન્ટેશન અપાયા બાદ આપના જે કંઈ પ્રશ્નો હોય એ પણ આપ રજૂ કરી શકો છો, જેથી અહીંયા આપને છે એક માર્ગદર્શન મળી શકે. બીજું મિત્રો, અહીંથી આ કામગીરી માટે દરેક જિલ્લામાં કોઈ એક નોડલ વ્યક્તિની, નોડલ કર્મચારી અધિકારીની નિમણૂક કરવા માટે અહીંથી આપણે DO/DPO શ્રીને જણાવેલ હતું. અમુક જિલ્લાની માહિતી આવી ગઈ છે, પણ ઘણા બધા જિલ્લાની માહિતી બાકી છે, તો એ પણ સત્વરે આજે જ મોકલી આપવા વિનંતી છે, જેથી એ પણ આપણે એક સંકલિત કરી શકીએ અને અહીંથી જિલ્લા કક્ષાએ કોઈ પણ પ્રશ્ન કે સૂચના હોય તો સીધું એમની સાથે આપણે વાતચીત છે મિત્રો કરી શકાય. તો મુખ્ય બાબત કે સમય મર્યાદામાં આ કામગીરી થાય એ જોવા માટે આપ સૌ લોકોને અનુરોધ છે. સાથે સાથે જયારે આપણે મળ્યા છીએ તો બીજી જે 2-3 બાબતો છે મિત્રો એ પણ આપણે કહેવાની છે, પણ આપણે ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. મિત્રો, સ્કૂલ કોમ્પોઝિટ ગ્રાન્ટ છે એનો બીજો હપ્તો, એટલે બાકીની 50%, પહેલા 50% આપણે પહેલા સેમેસ્ટરમાં ફાળવી હતી, પછી આ બીજા તો એ પણ ગ્રાન્ટની ફાળવણી અહીંથી થઈ ગઈ છે, જિલ્લા કક્ષાએથી પણ કદાચ થઈ ગઈ હશે. દરેક બીઆરસી મિત્રોને વિનંતી કે એ શાળા સુધી પહોંચી છે કે કેમ અને એની કામગીરી ચાલુ થઈ છે કે કેમ એ થોડું સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિનંતી છે, જેથી આપણો જે કોમ્પોનન્ટ છે એમાં આપણે સારી રીતે કામગીરી કરી શકીએ.
એવી જ રીતે મિત્રો સ્પોર્ટ્સની એક્ટિવિટી માટે પણ અમે આપ લોકોને શાળા દીઠ 1000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ છે એ આપને ફાળવી છે. એમાં આપણે જે સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ જે કંઈ એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ એનો લેટર પણ આપને કર્યો છે, તો એ પણ શાળામાં એ ગ્રાન્ટ પહોંચી જાય અને એ કામગીરી થાય જોવા માટે આપ લોકોને વિનંતી છે. ત્યાર પછી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત પણ મિત્રો આપણે વિદ્યાર્થી દીઠ 50 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ છે એ પણ આપને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત કામગીરી કરવા માટેની એક્ટિવિટી કરવા માટેની ગ્રાન્ટ અમે આપને ફાળવી છે. એનો પણ આપને પરિપત્ર ને કરેલું છે, તો એ પ્રમાણે શાળામાં એ એક્ટિવિટી થાય, સમય મર્યાદામાં એનું રિપોર્ટિંગ થઈ જાય એ આપને જોવા માટે વિનંતી છે. એવી જ રીતે મદદનીશ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર QM ના મિત્રોને વિનંતી કે આપણે પ્રતિભા શોધ કસોટી માટે આપણે ડીઓ ને ગ્રાન્ટ આપવા માટે, એટલે કે ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થી છે એ પ્રતિભા શોધ કસોટીમાં માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે લેવાય છે એમાં આપણા સરકારી RMSA અને મોડેલ સ્કૂલના દરેક બાળકો અને KGBV ના બહેનો એમાં ભાગ લે અને એની જે ફી છે એ આપણે અહીંથી આપને મોકલાવી આપી છે. તો એ પણ આપણા ડીઓ ના સંકલનમાં રહી અને એમાં પણ મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓ પાર્ટિસિપેટ થાય અને એ ગ્રાન્ટ છે એમના હવાલે મુકાઈ જાય એ જોવા માટે વિનંતી છે. તો આ બાબતો મિત્રો હતી. હવે આગળના અહીંથી ક્રમમાં જે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર માટેની જે બાબતો છે એ આપને અહીંથી જણાવવામાં આવશે. થેન્ક યુ. આભાર માનનીય સચિવ સાહેબ સમગ્ર શિક્ષા સાહેબની વાતમાં પુનઃ આપને દોહરાવું કે શનિવારના રોજ બાયસેગના માધ્યમથી શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીઓ સાથે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે માટેનું એક આયોજન કરેલ છે. અત્રેથી પણ આજે એક લેટર પણ કરી દઈશું, જેથી પ્રોપર જે એપ્લિકેશન છે એમાં જે કામ કરવાનું છે એને આગળ આપણે વધારી શકીએ. આપણી સાથે માનનીય ESPD મેડમ આદરણીય જયશ્રી દેવાંગર મેડમ પણ જોડાયેલા છે. તો મેડમને પણ વિનંતી કરીએ કે 2 મિનિટ આપ આપની અનુકૂળતા મુજબ માર્ગદર્શન આપશો. માનનીય મેડમ. જી મેડમ. નમસ્કાર. જિલ્લાના તમામ કર્મચારીગણ સ્વચ્છતા પુરસ્કાર અંગેની પહેલી આપણે માહિતી અને હાઉ ટુ રજીસ્ટર અને એની અંદર કોઈ જો પ્રશ્નો આવવાના હોય તો એ પ્રશ્નો તમારા મનમાં થાય તો એના માટે માર્ગદર્શન આપવા માટેની આ પહેલી વિષય છે. આશા છે તમે બધા જ્યાંથી આ વિષયનું આજે પાર્ટિસિપેટ કરો અને પ્રશ્નો હોય તો એના વિશે બી જો જાણ કરો. તો ગયા વર્ષે એવું બન્યું હતું કે આપણે છેલ્લે સ્વચ્છતા પુરસ્કાર માટેના રજીસ્ટ્રેશન માટે પછી વારંવાર બધાને જાણ કરીને પુશ કરવું પડતું હતું કે ભાઈ જલ્દી કરો. એવું ન બને. આપણે સ્ટાર્ટિંગથી જ કામગીરી કરીએ અને કન્સિસ્ટન્ટ કામગીરી કરીએ ને તો રજીસ્ટ્રેશન પણ પૂરું થશે અને કામગીરી પણ આપણે સારી રીતે કરી શકીશું. આ કામગીરી આપણા માટે નવી નથી, આપ સૌ જાણો જ છો. એટલે આશા છે કે આપ સારી રીતે કામગીરી પૂરી કરશો. થેન્ક યુ. આભાર માનનીય ESPD મેડમ. સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંગે એપ્લિકેશન અને એપ્લિકેશનમાં કયા ફંક્શન છે આગળ વધવાનું છે એની વિગતે ચર્ચા કરવા માટે કૃતિબેનને વિનંતી કરું. કૃતિબેન જે યુનિસેફમાંથી કન્સલ્ટન્ટ છે, અહીંયા સમગ્ર શિક્ષા સાથે જોડાયેલા છે અને સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંગે એપ્લિકેશનના જે પ્રોસેસ કરવાની છે અથવા જે સ્ટેપ કરવાના છે એમાં આપ પણ પરિચિત થાવ, જેથી આપણા શાળાના શિક્ષકોને અને આચાર્ય મિત્રોને આપ કહી શકો અને સપોર્ટ કરી શકો એ હેતુ આજે વીસીનું આયોજન કર્યું છે. તો સમગ્ર વિગતથી અવગત થવા માટે આપણે વિનંતી છે. સમગ્ર પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન આપને કોઈ પ્રશ્ન લાગે તો આપ નોટ કરી રાખશો. પ્રેઝન્ટેશન પૂર્ણ થયા બાદ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીશું. આભાર. કૃતિબેન. थैंक यू। आप सभी का आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को समय निकाल के जुड़ने के लिए आभार। जैसा कि हमने बात किया कि
पुरस्कार 2022 इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय पुरस्कार स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत 2016 में लॉन्च किया गया था और 2016, 17, 18 के बाद आज 2022 में ये लॉन्च हुआ है। जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च और हमें गुजरात बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पहले के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में दिखा चुका है। तो इस बार भी हमें आगे बढ़ के गुजरात स्टेट से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना है और अच्छा प्रदर्शन हमें पुरस्कार के कंपटीशन में करना है। जैसा आप सभी जानते हैं, 2020 में आपने स्वच्छता गुना एप्लीकेशन से ये असेसमेंट किया था, जिसके अंतर्गत 5 पैरामीटर्स थे। पीने का पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, ऑपरेशन मेंटेनेंस, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता वृद्धि। इन 5 पैरामीटर्स के साथ इस साल, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल प्रभावित हुए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस साल कोविड-19 के पैरामीटर, कोविड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस को भी जोड़ा गया है, जिस पर स्कूल असेस किए जाएंगे सारे टोटल क्वेश्चंस के साथ। पिछले दफा हमारे पास 39 क्वेश्चंस थे, अभी 5 से 6 पैरामीटर बनके हमारे पास 59 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम ये समझें कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हमारे रूरल साथ ही साथ अर्बन एरियाज के सभी सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सभी प्रकार के स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे गुजरात का लगभग 54,000 स्कूल्स बनते हैं टोटल, जिसमें हमारे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों ही स्कूल्स इसमें भाग ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कूल, हमें सभी स्कूल 54,000 स्कूल्स को सभी को ही भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाग लेने के लिए हमें आगे क्या करना होगा, यदि हम उस पे जाएं तो 2 तरीके से हम भाग ले सकते हैं। एक है वेब पोर्टल से, ये सारा ही सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है, तो या तो आप वेब पोर्टल से रजिस्टर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से। तो यदि आप वेब पोर्टल से करेंगे तो ये लिंक है, इसके बाद आप सभी के पास ये प्रेजेंटेशन भी भेज दिया जाएगा, आप इस लिंक को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और पहले जो लेटर और मार्गदर्शिका भेजी गई है उसमें भी ये लिंक आपको साथ में दिया गया है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, वहां से आप साइन अप करेंगे। साइन अप का प्रोसेस कैसा रहेगा तो हम आगे चल के देखेंगे। पहली बार आपको साइन अप करना होगा रजिस्टर करने के लिए अपने स्कूल को, और उसके बाद फिर सबको लॉगिन करना है। तो ये सिस्टम हम आज समझ लेंगे, जिससे कि हम आगे अपने बीआरसी, सीआरसी और टीचर्स तक ये सिस्टम कैसे चलना है वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये हम दूसरा तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ने का। तो आप दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में हमें जाना होगा और वहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 ये हमें ध्यान रखना है कि स्वच्छता से बहुत सारे प्रकार के हमारे एप्लीकेशन अलग अलग आ जाते हैं, जिससे हमने देखा है कि टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम ये सही स्पेलिंग डालें और 2021-22 वाली एप्लीकेशन को लॉन्च करें। जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो जैसा आपकी स्क्रीन पे पहली स्क्रीन दिख रही है कुछ इस प्रकार की दिखेगी, और कुछ इस प्रकार की दिखेगी जिसमें लॉगिन और साइन अप दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो पहले हमारे स्कूल को साइन अप करना होगा अपना यूडाइस कोड डाल के सबमिट करके, और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देके सब पासवर्ड अपना सेट करना होगा। साइन अप करके उनके पास एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। ये हो जाने के बाद, ये चाहे हम वेब पोर्टल से करें चाहे हम एप्लीकेशन से करें, ये हो जाने के बाद आगे हमें सिर्फ लॉगिन करना है। पूरा ये साइन अप का प्रोसेस नहीं है। तो आप अगली बार जब आएंगे तो आप लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, और वहां आप देखेंगे आपको अपना यूडाइस कोड डालना है और पासवर्ड
जो आपने सेट किया था अपने रजिस्ट्रेशन के समय पे, तो उससे आप यूज करके लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले वो आपसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन, एड्रेस, प्रिंसिपल, मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अंत में उस पे एक ओटीपी आएगा जो आपको चाहिए होगा अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप इसमें डाल लेंगे। एक बार हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, उसके बाद जो हम 6 पैरामीटर्स हमने पहले देखे थे, उन 6 पैरामीटर्स के क्वेश्चंस एक एक करके आने लगेंगे। जब तक आप पहला सेक्शन पूरा नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मान लीजिए हमने पहला कैटेगरी खोला पानी का, तो इस आपके पास क्वेश्चन आएंगे और नीचे जितने क्वेश्चन है वो लिखा होगा उसमें, तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को फिल कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हमने क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तरीके से हम सारे जो हमारे 6 पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स के क्वेश्चन सारे भर देंगे। सभी 100% का मतलब है कि सारे क्वेश्चन भर दिए गए हैं। अब उन क्वेश्चन को भरने के बाद आपको फोटोज अपलोड करने हैं। फोटोज अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। तो जब फाइनल सबमिशन आप करेंगे, फाइनल सबमिशन करने से पहले जो जानकारी हमने जितनी भी भरी है फॉर्म में वो चेंज कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिशन कर दिया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सभी के पास एक मार्गदर्शिका और एक क्वेश्चन का प्रारूप लेटर के साथ पहुंचा होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को वो दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वो लेटर का जो मार्गदर्शिका है और प्रारूप है वो सभी स्कूलों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये नेशनल की ऐप है तो इट इज इन इंग्लिश। इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ा डाउट हो सकता है, टीचर्स को डाउट हो सकता है, उसकी वजह से वो शायद इसका गलत आंसर कर दें और उनकी स्कोरिंग पे वो प्रभाव डालेगा। तो इंश्योर कि आप मार्गदर्शिका और साथ ही साथ क्वेश्चन का सैंपल उन्हें सभी टीचर्स तक पहुंचा दें। ये सभी डिस्ट्रिक्ट इंश्योर करें और सभी टीचर्स को ये गाइड किया जाए कि एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन और क्वेश्चन भरने से पहले उस मार्गदर्शिका को अच्छे से पढ़ लें और साथ ही साथ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। फोटोग्राफ अपलोड करते टाइम भी 9 तरह के फोटोग्राफ हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में 2-2 फोटो अपलोड करते हैं। तो उन फोटो को पहले से ही तैयार करके रखें और फिर जब आप भर रहे हैं तो एक ही साथ आप अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। अब जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपकी मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है। उस ओटीपी को डाल के आप कंप्लीट सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग ले पाएंगे हमारे स्कूल। और ये पॉलिसी हमें 28 फरवरी तक सभी स्कूल्स को पूरी करनी है। अब ये सारे क्वेश्चन जो हमारे 6 कैटेगरी के अंदर हैं उसमें 110 का स्कोर है टोटल, और हर स्कूल कितना स्कोर अचीव करेगा उनके आंसर के बेसिस पर हर स्कूल को 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं 90% स्कोर करने से ऊपर वालों को 5 स्टार, 75% से 90 के बीच में 4 स्टार। इस तरीके से सारे ही स्कूल्स को स्कोरिंग दी जाएगी। स्कोरिंग देने के बाद जो हमारे स्कूल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पानी और स्वच्छता में, वो अवार्ड्स के लिए आगे बढ़ेंगे। अवार्ड्स की कैटेगरी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक जाएगी। तो और इन हर लेवल पे 2 तरह की कैटेगरी है पुरस्कार की, एक ओवरऑल स्कोर और एक सब कैटेगरी। ओवरऑल स्कोर मतलब 110 में सारी कैटेगरी है जो हमारी 6 कैटेगरी हैं, इन 6 कैटेगरी को मिला के जो अच्छा परफॉर्म करेंगे स्कूल टोटल स्कोर में उसे उन्हें पुरस्कारित किया जाएगा। उनके डिटेल पैरामीटर है जिन पे हम बाद में बात करेंगे। और इस कैटेगरी के लिए 4 और 5 स्टार स्कूल एलिजिबल होंगे। दूसरा हमारा जो पुरस्कार की श्रेणी है वो है सब कैटेगरी वाइज। ये जो 6 कैटेगरी ऊपर आप देख रहे हैं, हर एक कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करने वाला वो स्कूल जिन्होंने पानी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है उनका ओवरऑल स्कोर
कम रह गया हो क्योंकि किसी और कैटेगरी में वो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन यदि किसी स्कूल ने एक कैटेगरी में बहुत अच्छा कार्य किया है तो उनको कैटेगरी वाइज भी पुरस्कारित किया जाएगा। और जो ओवरऑल स्कोर में कैटेगरी में जीत चुके हैं वो सब कैटेगरी में दोबारा नॉमिनेट नहीं होंगे। सो इस सारी चीज को करने के लिए हमें एक टीम भी बनानी है। जब सारे स्कूल डेटा भर देंगे, 28 फरवरी तक सभी स्कूल्स का डेटा आ जाएगा, उसके बाद एक डेटा वेरिफिकेशन टीम का काम चालू होगा। ये उसमें कि सारे स्कूल्स ने डेटा सही भरा है या नहीं। जो हमारे एलिजिबल स्कूल्स हैं 4 स्टार और 5 स्टार वाले, उनका स्क्रीनिंग होगा, वो भी एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा। उसपे अभी एमओई ने उसको एक्टिव नहीं किया है, एक बार सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो वो टैब भी एक्टिव हो जाएगा और हम उसकी ओरिएंटेशन बाद में करेंगे। तो एक ब्लॉक लेवल स्वच्छता पुरस्कार समिति बनानी है और एक जिला लेवल स्वच्छता पुरस्कार समिति बनानी है, जिसमें कौन कौन होंगे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जिसमें ब्लॉक लेवल पे हमारे सारे ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स होंगे और हमारे जिला लेवल पे जिला लेवल ऑफिशियल्स होंगे और उनकी स्क्रीनिंग डेटा की एप्लीकेशन के थ्रू की जाएगी। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जैसा त्रिवेदी सर ने पहले बोला, एक नोडल अधिकारी नामित करना है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने कर दिया है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे भी 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका नोडल अधिकारी नामित होना बाकी है। तो सभी से विनती है कि आज सभी अपना नोडल अधिकारी नामित कर दें और उनके साथ अपने नंबर दे दें जो गूगल शीट में दिया हुआ है, इस लिंक पर है और सभी के पास वो लिंक पहले पहुंच चुका है, जिससे जो भी इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से रिलेटेड जानकारी है वो इस नोडल पर्सन से कोऑर्डिनेट की जाएगी स्टेट लेवल से। साथ ही हमारा सॉरी ये थोड़ा फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है, बट अब ये जो हमारा सारे स्कूल्स का डेटा है वो नेशनल डैशबोर्ड पर जाएगा। पिछली बार जब हमने 2020 में ये सर्वे भरा था तो हमारा स्टेट डैशबोर्ड पे आया था, क्योंकि अब ये हमारा नेशनल लेवल पुरस्कार है तो ये नेशनल लेवल डैशबोर्ड पे जाएगा। जो आप लिंक देख रहे हैं उस लिंक से सभी हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य में कितने भर में हैं स्कूल, कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितनों ने सबमिट किया है, और साथ ही साथ हम अगर अपने जिले पे क्लिक करेंगे तो हम अपने ब्लॉक के रजिस्ट्रेशन देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से वो डैशबोर्ड में हमें जानकारी दिखेगी। आज सुबह का स्टेटस था जो अभी काफी अच्छा नहीं है, सिर्फ 491 स्कूल्स ने ही रजिस्टर किया है और 68 ने सबमिट किया है। ये नंबर बढ़ रहे हैं तो सभी जिलाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्कूलों तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाएं, मार्गदर्शिका और क्वेश्चंस जल्द से जल्द पहुंचाएं जिससे वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। और ये हमारी इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने अभी एक भी फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स अपना स्टेटस देखते हुए कार्य को जल्द से जल्द चालू करें। और यदि कोई भी प्रकार की जानकारी या टेक्निकल सहायता की जरूरत है तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है, साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जो एक्टिव है और हमें इस पे कुछ क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं। इस पे हम तुरंत ही आपके क्वेरीज का रिजॉल्व करेंगे, तो आप इस पे हमें कॉन्टैक्ट करें। आभार कृतिबेन। પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન આપ સૌએ જોયું હશે કે એપ્લિકેશનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો અને સાથે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કારની બાબતોથી અવગત કર્યા। આમ પણ આપ સૌ જાણો છો કે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કારમાં ભૂતકાળમાં આપણે આપણા સ્ટેટની એપ્લિકેશનથી તૈયાર કર્યું હતું। હવે આ વર્ષે નેશનલ લેવલથી જે એપ્લિકેશન છે એની અંદર જ આપણે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી અને આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। હવે આપણે સમગ્ર શિક્ષાના શ્રી શ્રુતિબેન છે તો તેમને પણ વિનંતી કરું કે તેઓ આજને સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંગેની બાબતમાં આપણને અવગત કર્યું। શ્રુતિબેન। સૌને નમસ્તે। સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર આપણી માટે કોઈ નવી બાબત નથી। 2016-17 માં એક ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એચઆરડી એટલે અત્યારે જે આપણે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન કહીએ છીએ એમણે લોન્ચ કરેલું। સેકન્ડ ફેઝ થયો 2017-18 માં અને હવે એક ગેપ પછી ફરીથી 2021-22 નું સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર જ્યારે લોન્ચ થયું છે।
ખાસ કે અત્યારે આપણી ગુજરાતની 54,444 પ્રાઇવેટ ગ્રાન્ટેડ અને ગવર્નમેન્ટ સ્કૂલ્સ છે એ મેક્સિમમ સ્કૂલ્સ પાર્ટિસિપેટ કરે એટલા માટે આજે આપણે આ વીસી કરી રહ્યા છે. આપણા લેવલથી કોઈ લૂપ હોલ્સ ના રહે, ક્યાંય પણ સપોર્ટની જરૂર હોય તો બ્લોક લેવલ, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ અને સ્ટેટ લેવલ કમિટી એટલા માટે તૈયાર કરેલી છે. ખાસ બીજું કે જ્યારે આપણે છેલ્લા 16, 17 અને 17, 18 માં જ્યારે આપણે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર કર્યું ત્યારે એમાં થોડી મેન્યુઅલ પ્રોસિજર્સ હતી, એટલે એ થોડી લાંબી અને ટીડિયસ પ્રોસેસ હતી. આ વર્ષે હવે એવું છે કે બધા એપ્લિકેશન્સથી બહુ જ વાકેફ છે, શિક્ષકો પણ બહુ જ વાકેફ છે, એટલે એ કામગીરી ઘણી સરળ થઈ ગઈ છે. આપણે ખાલી આપણા લેવલ પર એટલું એન્શ્યોર કરવાનું છે કે જે માહિતી ભરાય છે એ સાચી ભરાય. શિક્ષકોને ટેકનિકલ કોઈ ગાઈડન્સની જરૂર હોય તો અમારી ટેકનિકલ ટીમ છે સિવિલની, બાકી જે પેડાગોજીની ટીમ છે, ટીચર્સ ટ્રેનિંગ છે, એમઆઈએસ જે ટેકનિકલ ટીમ છે, ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાંથી છે. રેઝિડેન્શિયલ સ્કૂલ પર આપણે ખાસ ભાર આપવાનો રહેશે કેમ કે રેઝિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં આપણે સૌ વિચારીએ છીએ કે નોર્મલ સ્કૂલમાં બી જ્યારે આપણે આપણું બાળક પણ સ્કૂલમાં મોકલતા હોય ત્યારે આપણે શું સ્વચ્છતા એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, તો રેઝિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં તો જ્યારે બાળકો રહેતા હોય ત્યારે એ મેટર કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એને ધ્યાન પર રાખીને આપણે દરેક શાળાઓ આમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ અને એનાથી આપણે ખબર પડશે કે આપણે ક્યાં છીએ, આપણે કેટલા ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે. અવોર્ડ્સ કે રેકગ્નિશન એક વસ્તુ છે, પણ મેઇન એ છે કે આપણે હાઇજીન લેવલમાં ક્યાં છીએ. બીજું કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણો જે પરફોર્મન્સ હતું 2017-18 નું ઘણું સારું હતું. લગભગ 34,000 શાળાઓએ વખતે ભાગ લીધો હતો, એટલે 16-17 ની કમ્પેરિઝનમાં ઘણું વધારે હતું. બીજું ગુજરાત વોઝ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટ, એટલે નેશનલ લેવલ પર આપણને જે પરફોર્મન્સ બેઝ આપણને અવોર્ડ મળે એ પણ હતા કે ગુજરાતમાં 10% સ્કૂલ એવી હતી કે જે નેશનલ લેવલમાં અવોર્ડ મળી હતી. 2016-17 માં એવું હતું કે 172 શાળાઓને નેશનલ લેવલ પર અવોર્ડ મળ્યો હતો, એમાંથી 6 શાળાઓ ગુજરાતની હતી. એના પછી 17-18 માં માત્ર 52 શાળાઓને નેશનલ લેવલ પુરસ્કાર મળ્યો, એમાંથી 5 શાળાઓ આપી હતી, લગભગ 10%, 3% થી 10% સુધીનો આપણું નેશનલ લેવલ પર પરફોર્મન્સ દેખાયું હતું. એટલે આપણે જાળવી રાખીએ અને મેક્સિમમ સ્કૂલો પાર્ટિસિપેટ કરીને સારામાં સારો પ્રોગ્રેસ આપે એવું આપણે ખાસ એન્શ્યોર કરીએ. બીજું કે આ રેકગ્નિશન માટે મિનિસ્ટ્રીની જે ગાઈડલાઈન છે એમાં 3 સ્ટાર, 4 સ્ટાર અને 5 સ્ટાર આ ત્રણેય સ્ટાર સ્કૂલ્સને એમાં એલિજિબલ ગણી છે. એનાથી પણ વધારે અમે અત્યારે સ્ટેટમાં પ્રપોઝલ મૂકેલી છે કે જેમાં બ્લોક લેવલના અવોર્ડ પણ અમે કન્સિડર કર્યા છે. રેઝિડેન્શિયલ સ્કૂલનું પણ અલગ કેટેગરી રાખી છે અને નંબર એમાં થોડા વધારે છે. એમાં આપણે 3 સ્ટાર સ્કૂલ્સને નથી લઈ રહ્યા કેમ કે ઓલરેડી 3 સ્ટાર એટલા માટે છે કે જે ઘણા લોઅર પરફોર્મિંગ સ્ટેટ છે એના માટે મિનિસ્ટ્રીએ 3 સ્ટારનું પ્રોવિઝન રાખેલું છે. ગુજરાતનું પરફોર્મન્સ કમ્પેરેટિવલી ઘણું સારું છે, એટલે આપણા ત્યાં 4 સ્ટાર અને 5 સ્ટાર રેટેડ જે સ્કૂલ્સ હશે એ રેકગ્નાઇઝ થશે ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટેટ લેવલ કે નેશનલ લેવલ માટે. એટલે આપણે આપણું પરફોર્મન્સ એન્શ્યોર કરીએ અને મેક્સિમમ સ્કૂલ પાર્ટિસિપેટ થાય. નોડલ ઓફિસર્સ જે અપોઇન્ટ કરવાના છે એના માટે અમે ખાસ એટલા માટે ભાર મૂકી રહ્યા છે કે એ નોડલ ઓફિસરને અમે રેગ્યુલર એમના ડિસ્ટ્રિક્ટ આખા સ્ટેટની અપડેટ આપીશું કે તમારા જિલ્લામાં કેટલી સ્કૂલોએ સબમિશન કર્યા છે અને એનું શું પરફોર્મન્સ છે. એટલે એનાથી સ્કૂલો મોટિવેટ થશે, તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે તમારા જિલ્લામાં ક્યાં આગળ જરૂરિયાત છે તમારે પુશ કરવાની. આ કારણથી તમે જલ્દીથી જેટલા જિલ્લામાં નોડલ ઓફિસર્સ અપોઇન્ટ કરવાના બાકી છે એ કરી દઈએ, એને એન્શ્યોર કરીએ. બીજું એવું છે કે જ્યાં જ્યાં પણ ટોયલેટ્સમાં કે ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટીમાં કે કોવિડ-19 પ્રિપેરનેસમાં અમુક પહેલા 39 ક્વેશ્ચન્સ હતા, 59 કર્યા છે કેમ કે કોવિડ-19 ને આપણે અંદર કન્સિડર કર્યું છે. ના ખબર પડે તો થોડી ગાઈડલાઈન્સ આપણે આપેલી છે ગુજરાતીમાં, તમે શાળાઓને ખાસ મદદ કરજો કે ડેટા ભરવામાં ભૂલ ના થાય. ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે સ્કૂલોમાં ટોયલેટ્સ કે ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટી નાની મોટી ટેકનિકલ એરરના કારણે યા પછી મેન્ટેનન્સના કારણે નોન ફંક્શનલ થઈ ગઈ છે. આ બધું ના થાય અને સારું પરફોર્મન્સ આપણે આપી શકીએ એના માટે આપ સૌનો સહકાર જોઈશે. એટલે અગેન ગુજરાત બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટમાં આવે અને એમાં આપ સૌનું પરફોર્મન્સ સારું રહે, આપ સૌનું કોન્ટ્રીબ્યુશન રહે. અગેન એક રેકગ્નિશન આપણા સ્ટેટને મળે એવું ઈચ્છીએ છીએ અહીંથી. થેન્ક યુ. આભાર શ્રુતિબેન. આપણી સાથે યુનિસેફ દિલ્હીથી આદરણીય પ્રતિભા મેડમ પણ જોડાયેલા છે, તો મેડમને પણ વિનંતી કરીએ કે આજના વિષયની અનુરૂપ આપણને માર્ગદર્શન અને શુભેચ્છા પાઠવે.
प्रतिभा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दिखा सकूं। जी मैम। मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या अभी स्क्रीन पे? Yes. ओके ओके, थैंक यू। आई विल स्टार्ट नाउ। आपका सबसे पहले तो सबका हार्दिक धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि गुजरात ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में विगत वर्षों में आपने इतनी अच्छी प्रगति करी है। और अब जबकि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार इस साल फिर से लॉन्च किया गया है देश भर के स्तर पे, तो इसमें आपको बहुत अच्छा एक मौका है। ये सभी स्कूलों द्वारा जो इतना उल्लेखनीय कार्य किया गया है पेयजल स्वच्छता के संपेक्ष में, उसको आप पूरे देश में आप उसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं और उसको सही प्रकार से उसका एक पुरस्कृत भी किया जाने का हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। और मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है आपके साथ हम सिर्फ कुछ प्रमुख मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो पुराना स्वच्छ विद्यालय था उसमें क्या अंतर है और अभी जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है उसमें नई क्या चीजें लाई गई हैं। साथ ही साथ इन बिंदुओं पे भी मैं बात करना चाहूंगी कि कहाँ आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके अपने स्कूल के लेवल पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आपको ज्यादा अच्छी रैंकिंग किस प्रकार मिल सके उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आप सभी अवगत हैं, 2016 और 2018 में दोनों साल ये किया गया था। और लगभग इसमें 4 साल का समय हमें लग गया था, क्योंकि उसमें आकलन करना, अलग अलग जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उसका वेरिफिकेशन करने में समय लगा था। तो ये अवार्ड्स का बेसिक पर्पस ये है कि स्कूल में स्वच्छता रखी जाए, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को भी मतलब बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रह सके, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का, वहाँ स्टाफ का, सबका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, इसको सुनिश्चित करेगा। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का पर्पस यही है कि सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यही है कि सिर्फ एक पुरस्कार दे करके उनको नहीं रुकना है, और स्कूल में लगातार पेयजल स्वच्छता की अच्छी व्यवस्था किस तरह रखी जा सके और बच्चों के बीच में जो स्वच्छता के व्यवहार है उसका लगातार पालन कैसे हो सके, तो हमारा स्वच्छ विद्यालय का उद्देश्य यही है। अब इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पिछले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो 17-18 में हुआ था उसमें किस प्रकार से भारत की स्थिति है। आपके सामने मैप है, आप सभी देख सकते हैं। जो 5 स्टार वाले स्कूल हैं या जो पुरस्कृत होने वाले स्कूल हैं उनकी संख्या आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि देश का जो आप नीचे का हिस्सा है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा आपको ऐसा चिन्हांकित आपको दिखाई देगा मैप में कि सदर्न स्टेट्स में ज्यादा पुरस्कार या ज्यादा 5 स्टार स्कूल्स थे। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, गुजरात का मैप भी आपके सामने है भारत के नक्शे में। और मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वच्छ विद्यालय 17-18 के समय में गुजरात में स्वाला स्वच्छता गुणक और इस प्रकार के आपने बहुत से इनिशिएटिव नहीं किए थे, लेकिन अब आपके पास मौका है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो अभी नया लॉन्च हुआ है इसमें आप और अच्छे प्रकार से, ये नक्शा कुछ हमें अलग रूप में दिखेगा अगर हम जब स्वच्छ विद्यालय की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 2021 और 22 की, तो हम नक्शे में ये चाहते हैं, आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी यही विचार करते हैं कि गुजरात के जो मैप दिख रहा है हमें यहाँ पे, वहाँ सबसे ज्यादा संख्या में पुरस्कृत स्कूल दिखे, सबसे ज्यादा 5 स्टार 4 स्टार स्कूल दिखे। क्योंकि विगत वर्षों में भी 2016-17 में, 2017-18 में भी गुजरात बहुत अच्छी हाई परफॉर्मेंस रही थी गुजरात की। और 6 स्कूल गुजरात से नेशनल लेवल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उनको मिला था 16-17 में, 5 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था 17-18 में। ये संख्या अब हमें बढ़ानी ही है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्वच्छ विद्यालय जो 21-22 का आया है, इसके लिए पात्रता और उपश्रेणी क्या है। पहले भी आपकी 5 उपश्रेणियां और पात्रता हुई करती थी कि जल, शौचालय की सुविधा, साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था, संचालन और रखरखाव, और व्यवहार परिवर्तन या क्षमता निर्माण, जिसे कि हम ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहते हैं। और इस बार जो है नया एक इसमें आयाम जोड़ा गया है कोविड-19 का, उसकी तैयारी और रिस्पांस, क्योंकि हम सभी अवगत हैं कि देश में लगभग 3 बार इसका ये महामारी का बड़े व्यापक स्तर पे प्रभाव हो चुका है। हम सभी अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति प्रभावित रहा है, तो कोविड-19 को भी इसमें प्रमुखता से जोड़ा गया है।
और आप सभी अवगत हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है देश की सभी राज्यों में काफी हद तक प्रभावित हुई है। इस प्रकार से स्कूल कभी भी इस प्रकार बंद नहीं रहे होंगे। मेरे ख्याल से जब से कई स्कूल शुरू हुए होंगे, कभी इस प्रकार से इतने दिनों के लिए बंद नहीं हुए होंगे। और जब स्कूल यदि खुले भी हैं कोविड महामारी के समय में, तो वो हो सकता है कुछ ही कक्षाओं के लिए खुले हैं या कम बच्चे आ रहे हैं। तो हमें कोविड-19 की तैयारी भी करनी है, और आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी ओमाइक्रॉन की वजह से तीसरा वेव आया था, पिछले साल डेल्टा वेरिएंट था, तो आने वाले समय में भी वैज्ञानिक इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा कोरोना का या किसी और संक्रामक रोग का। तो इसी के संक्षेप मतलब इसी के संदर्भ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो संचारी रोग हैं, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, या गंदगी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, वो किसी न किसी तरह से पेयजल स्वच्छता के अगर हम सुनिश्चित कर लेंगे, तो वो रोगों से हम बच्चों को भी बचा सकेंगे, और शिक्षा व्यवस्था जो है ना अपने सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी। अब आते हैं सांकेतिक मानक और मापदंड जो पेयजल के लिए है कि आप सभी को लगभग शायद पता भी हो इनमें से कुछ बिंदु, लेकिन मैं इनको सिर्फ इसलिए जल्दी से कवर करना चाहती हूँ कि जो हमारे स्वच्छ विद्यालय के जब प्रश्न हम देखें, आप सभी देखें, विद्यालय स्तर पे भी सब शिक्षक वगैरह जब देखेंगे उसे भरेंगे, तो ये मालूम रहना चाहिए कि अगर जल से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका आखिर मानदंड क्या होना चाहिए। तो जल के लिए मापदंड जो है, कम से कम एक समर्पित सुरक्षित पेयजल का स्रोत हो, और शौचालय का जो सोखता गड्ढा होता है और जो पानी का स्रोत होता है, जल स्रोत होता है, उसके बीच में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी रहनी चाहिए। गैर आवासीय विद्यालय अगर है तो उसमें 1.5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और स्टोरेज टैंक की क्षमता लगभग 2 दिनों के लिए, यदि स्कूल में ओवरहेड टैंक है, छत पे ऊपर जो पानी की टंकी होती है वो है, तो उसमें 2 दिनों के लिए बफर होना चाहिए, या एक्स्ट्रा जल ऐसा उपलब्ध होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए। और प्रत्येक शौचालय में नल होना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह से हर 50 विद्यार्थियों पे एक पेयजल का बिंदु होना चाहिए। अब बात करते हैं साबुन से हाथ धुलाई की क्या अवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक 20 बच्चों के लिए एक पॉइंट होना चाहिए हाथ धुलाई का। और हाथ धोने के पॉइंट जितने भी हों, लगभग अगर 2 पॉइंट हो तो उसपे साबुन का एक ट्रे अवश्य होना चाहिए, साबुन मौजूद होना चाहिए। शौचालय की यदि बात करेंगे तो प्रत्येक 40 बालिकाओं पर एक शौचालय इकाई होनी चाहिए, और प्रत्येक 80 बालकों पर एक शौचालय इकाई होनी चाहिए कम से कम। ये गैर आवासीय या हमारे जो डे स्कूल जिसको हम कहते हैं उसके लिए मानक है। आवासीय विद्यालयों के लिए ये संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। शौचालय इकाई 20 बालकों पर एक होनी चाहिए और 20 बालिकाओं पे भी एक होनी चाहिए। इसी तरह से महावारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए जो है प्रत्येक शौचालय में उसका डस्टबिन मौजूद होना चाहिए, या गुजरात में तो कई जगह अच्छे प्रयोग किए गए हैं, जो भस्मक यंत्र या इंसिनरेटर हम कहते हैं, वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हर शौचालय में 2 खूंटियां या हुक कपड़े टांगने के लिए अंदर की तरफ होने चाहिए। शौचालय में अंदर अंदर की तरफ एक कुंडी वाला दरवाजा होना चाहिए। और वेंटिलेशन के लिए जो है उचित ऊंचाई पर खिड़की भी होनी चाहिए, क्योंकि शौचालय में वेंटिलेशन नहीं होगा तो ना तो रोशनी आएगी और ना ही वहां से बुरी जो उसमें बदबू या इस प्रकार की चीजें हैं वो निकल नहीं पाएंगी। इसी तरह से यूरिनल की भी व्यवस्था है, नीचे आप देख सकते हैं। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। कोविड-19 की तैयारी के लिए ये सारे बिंदु आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा। इसको बहुत प्रमुखता से स्वच्छ विद्यालय में भी इसका ध्यान रखा गया है। और श्वासन शिष्टाचार या जिसे रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जैसे कि खांसते समय, छींकते समय, बोलते समय या खाना खाते समय जो है दूरी बनाए रखनी है। और अपने जो एल्बो होती है या कोहनी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो उससे नाक को ढक लेना है खांसते या छींकते समय, अगर हैंकी या कोई टिश्यू उपलब्ध ना हो उस सिचुएशन में। और जो फेस कवर या मास्क है उसका लगातार उपयोग करना है स्कूलों में। हाथ धुलाई की व्यवस्था और हाथ धुलाई का जो बिहेवियर है, बच्चों के बीच में आदतें हैं, उसको सही समय पे सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसी के साथ साथ में जो प्रमुखता से स्वच्छता, जनरल क्लीनलीनेस की बात अगर करें कि स्कूल के जो हमारा प्रेमिसेस है, स्कूल बिल्डिंग है, और जो सतह इस प्रकार की है स्कूल में जिसे बार बार छुआ जाता है, जैसे कि बच्चों के बैठने के डेस्क बेंच हो, या जो उनका खेलने कूदने का सामान हो, बॉल हो, बैट हो, कोई भी चीजें हो, और या दरवाजे पे लगे हुए हैंडल हो, तो इनको जो है ना लगातार जो है डेली रूप में कम से कम डेली उनका डिसइंफेक्शन हो। तो ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ क्लीनिंग करने से, सिर्फ सफाई करने से डिसइंफेक्शन नहीं होता है। तो
यदि डिसइंफेक्शन होता है तो उसको हम मतलब एटलीस्ट हमारा कीटाणु नाशक हो जाएगा, वहां पे कीटाणु का पूरी तरह से वहां रिमूवल हो जाएगा। और ये अब ध्यान करते हैं, मैं बात करना चाहूंगी किस प्रकार से एडिशनल क्वेश्चन क्या अलग अलग से प्रश्न डाले गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में। तो पेयजल से संबंधित जो है कुछ एक तो नोट्स डाले गए हैं इस बार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की गाइडलाइन हो या इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, तो जहां जहां प्रश्न है वहां पे थोड़े से गाइडेंस के पॉइंट हैं कि आखिर प्रश्न है किस संदर्भ में या उसमें क्या जरूरत है। और साथ ही साथ जो एडिशनल क्वेश्चन डाले गए हैं, एक तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एट सोर्स है, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है। पहले जो प्रश्न थे उसमें पेयजल के स्रोत तो दिए गए थे, लेकिन यदि वो क्या वो सुचारू रूप से मतलब चलायमान स्थिति में है या वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है या वो चलने की स्थिति में ही नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट की बात इसमें की गई है नया स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में। और शौचालय की जो है उसमें बात की गई है किस प्रकार का शौचालय बच्चों द्वारा उपयोग होता है, क्योंकि कुछ शौचालय जो हैं वो उपयुक्त नहीं होंगे, उतने सफाई रखने में मुश्किल है या बच्चों की संख्या के अनुसार ठीक नहीं है। ये सारी चीजें इस बार डाली गई हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस की यदि बात करें तो न्यूट्रिशन गार्डन डाला गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में इस बार। और ये भी ध्यान उसमें डाला गया है प्रमुखता से कि शौचालय का जो सफाई होता है और रखरखाव होता है उसको कौन सुपरवाइज करता है, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ फिटिंग एंड फिक्सचर ऑफ टॉयलेट, जो उसमें आपके जॉइंट्स हैं शौचालय में, उसमें जो कई जगह जो नल के जॉइंट हैं या शौचालय के उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, या उसमें जो वाटर क्लोसेट है या जो फ्लशिंग सिस्टम है उसमें लीकेज तो नहीं, इस तरह की चीजों की रख रखाव भी उसको हमें इंक्लूड किया ऑपरेशन मेंटेनेंस में। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है आपकी विद्यालय संचालन समिति, उसका पार्टिसिपेशन इसको भी ध्यान में रखा गया है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस स्कूल वॉश के लगातार महीने वाली मीटिंग में, जो उनकी हर महीने होने वाली उनकी जो मीटिंग होती है उसमें इस बिंदु को रखा जाता है कि नहीं। अगली स्लाइड देखेंगे। हाँ, तो कोविड-19 से प्रिपेयर्डनेस, ये लगभग 12 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार के सब क्वेश्चन डाले गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये थूकने पर स्कूल में रोक हो, प्रतिबंध हो, ये सब चीजें हैं। और जो मैंने कहा था सतह की सफाई, उसको प्रमुखता से देखा गया है। और देखेंगे मूल्यांकन की श्रेणियां जो है आपकी 5 पुरानी श्रेणियां हैं यहाँ ऊपर से नीचे तक: जल, शौचालय, साबुन से हाथ धुलाई, संचालन, रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन। इसी में कोविड-19 को डाल दिया गया है। और इस बार मार्क्स जो है अधिकतम अंक जो है 110 होगा। पहले 100 ही रहता था लेकिन अब 110 कर दिया गया है। लेकिन आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो उसमें से ही, उतने परसेंटेज में से ही आपका 5 स्टार का रैंकिंग डिसाइड होगा। अब बात करेंगे क्विक विन क्या है, माने कि आप तुरंत तुरंत किन बिंदुओं पर ध्यान दे करके उनको ठीक करके आप तुरंत अच्छे रैंकिंग ले सकते हैं स्कूल्स में। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन को पास में रखिए एक बार थोड़ा समय दे करके शांति से उसको पढ़ लीजिए और अपने पास सारी जानकारी उपलब्ध रखिए। इससे पहले कि आप मतलब आप डिजिटली ऑनलाइन जानकारी डालना शुरू करें, उससे पहले तैयारी रखिए। इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि आप प्रश्नों का जवाब आपके पास पहले से रहेगा। अगर ऑनलाइन भरते समय कोई चीज आपको भूल गई या अचानक से ध्यान नहीं आ रही, तो हमारे पास कम समय है, कई बार नेटवर्क का इशू है, तो ये अगर आपके पास जानकारी पहले से उपलब्ध होगी तो आप आसानी से प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे। और एक तो प्रैक्टिस सेशन भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर एक प्रिंट वाली कॉपी है, आपकी प्रिंट आउट की कॉपी है स्वच्छ विद्यालय गाइडलाइन की, तो उसमें आप मार्किंग कर सकते हैं सभी प्रश्नों की, बाद में आप लेके उसे बैठ सकते हैं डिजिटली भरने के समय में। और ये छोटे छोटे सुधार हैं, 2 नंबर का बिंदु जो आप देख सकते हैं ना, माइनर इंप्रूवमेंट, जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर, हमारा अच्छे मार्क्स मिल सके स्कूल को। सभी शौचालय के दरवाजों में कुंडियां होनी चाहिए अंदर की ओर से बंद करने के लिए, इससे प्राइवेसी सुनिश्चित होती है। और इसी तरह से एक ढक्कनदार जो डस्टबिन होता है या कचड़े का डिब्बा शौचालय में उपलब्ध होना चाहिए। स्कूल का जो कैंपस है उसमें भी पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 17-18 के समय भी मैं दिल्ली के स्तर पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया था, क्योंकि कुछ स्कूलों को 5 स्टार रैंकिंग मिल गई थी लेकिन बाकी का स्कूल कैंपस बहुत ही गंदी स्थिति में था। तो इस बात पे प्रमुखता से ध्यान देना है आपको कि सिर्फ शौचालय की बात नहीं करेंगे, तो पूरे स्कूल कैंपस में भी पूरी स्वच्छता हो। जैसा कि वहां पे मतलब कचरा सामने ना पड़ा हो, वाटर लॉगिंग ना हो, मैंने सड़ा हुआ पानी कहीं पे जमा ना हो, मच्छर मक्खियां ना हो, इस तरह की चीजें भी आप पे तुरंत अगर ध्यान देंगे तो अच्छा इसमें फायदा हो सकता है।
और सबसे बड़ा बिंदु एक ये है कि आप जो तीसरा पॉइंट है कि फोटोग्राफ जो है वो अपने पास तैयार रखिए। ऐसा नहीं कि आप जब डिजिटली भरने बैठे हैं तो आपको लगे कि अरे अभी हमारे पास अच्छे पिक्चर्स नहीं है। तो यदि आप पिक्चर अपने पास रेडी रखेंगे तो आपका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आप इसको फाइनल सबमिशन भी कर सकेंगे। और पिक्चर आप किस प्रकार की रखेंगे वो अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे हाथ धुलाई की अगर बात करनी है तो हमें इस प्रकार की आपके पास ऊपर दिख सकता है, एक बच्ची है जो अपने साबुन लगे हुए हाथों को दिखा रही है, उस प्रकार की एक पिक्चर हो सकती है। वो जस्ट नीचे आप एक पिक्चर देखेंगे, एक स्कूल अच्छा सा दिख रहा है, साफ सुथरा है पूरा, कहीं सॉलिड वेस्ट नहीं है, मतलब ठोस कचरा नहीं है, कहीं पे गंदे पानी का जलभराव नहीं है। तो एक स्कूल प्रेमिसेस की अच्छी सी तस्वीर होगी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ शौचालय जो दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय होते हैं, वो आपको ऐसी फोटो लेनी उसमें सब चीज कवर हो जाए, जैसे कि शौचालय में हैंड रेल की व्यवस्था होती है या वॉश बेसिन की किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। और दिव्यांग जनों के लिए जो शौचालय है उनकी थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो है आप उसको ध्यान में रख के उसके अनुसार कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको पिक्चर ऐसी लेनी है कि वो पिक्चर आपकी बात करे और स्वयं अपना बता दे कि उसमें क्या उसमें कवर किया हुआ है। अब मैं बात करूंगी, आपका बस थोड़ा सा मुझे 3-4 मिनट और समय चाहिए कि दूसरे राज्यों में ये क्या प्रयास किए गए हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए, अच्छा वहाँ का प्रदर्शन हो इसलिए। तो वर्ष 2019 में ही उड़ीसा में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के रूप में इन्होंने क्लीन स्कूल अवार्ड को लॉन्च कर दिया था 2019 में। और ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल दोनों अप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे काफी स्कूलों को आप देखेंगे, लगभग जो है 40 स्कूलों को पुरस्कृत किया गया था स्टेट लेवल पे, 234 स्कूल्स को जो है जिला स्तर पे, और ब्लॉक लेवल पे भी स्कूलों को अवार्ड दिया गया था। तो ये काफी अच्छे प्रयास हो रहे हैं दूसरे राज्यों में। अब बात करते हैं बिहार की। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बिहार का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में सन 2016-17 और 2017-18 में। लेकिन बिहार में इस बात को एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी या उनको एक बोले कि चुनौती को उन्होंने अवसर में बदल लिया और बहुत सारे प्रयास किए। तो उन्होंने 11 नवंबर 2021 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो बिहार का है उसको लॉन्च किया है। और इसमें अभी उनके कई विद्यालयों ने, उनके मतलब जितने विद्यालय हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूलों का वेरिफिकेशन करेगा जाएगा और उसके तहत हर वर्ष 60 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें पुरस्कार राशि भी आप देख सकते हैं अच्छी है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं बात करूंगी यदि सन 2016 मतलब 17-18 के भी पहले। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता था। ये बात ध्यान में रखने की है कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां से बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स भी देश में आते हैं। लेकिन वहां पे समस्या यही थी, स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प नाम का कार्यक्रम चला रखा है। इस कार्यक्रम में विद्यालयों में स्वच्छता की व्यवस्था को बहुत प्रमुखता से देखा गया है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि विद्यालय कायाकल्प में स्कूल में शिक्षा की स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, ये सारी बिंदु भी कवर किए जाते हैं। और ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प में कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं कि उन्होंने लगभग 1,04,000 करोड़ रुपए अलग अलग रिसोर्सेज से मोबिलाइज करिए, क्योंकि स्कूल का पूर्णतया ट्रांसफॉर्मेशन या कायाकल्प करना पड़ेगा वहां पे। तो इसके आधार पे कार्य ऑलरेडी शुरू हो गया है और लगभग 1 वर्ष में ही उन्होंने 77% स्कूल्स में सुधार करके दिखाया। क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल थे जिनमें कि 1 स्टार की कंडीशन थी, अगर हम बात करें स्वच्छ विद्यालय के मानदंड के अनुसार, तो उन्होंने उसमें एक कायाकल्प करके दिखाया और 1 साल में ही लगभग 77% स्कूल जो हैं राज्य के 3 स्टार एंड अबव कैटेगरी में पहुंच गए। तो ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के थोड़े से रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो आप देख सकते हैं एक ये चित्र दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी विद्यालय की। तो ऊपर के चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत टूटी फूटी जर्जर हालत में स्कूल की बिल्डिंग है और उनका जो आगे का गैलरी है वो भी खराब है। और साथ ही साथ 2 बच्चों के असेंबली एरिया या प्लेग्राउंड है वो भी कितना बुरे हाल में है। नीचे की पिक्चर आप उसी कैंपस की देखेंगे कि गेट कितना अच्छा बना दिया गया है, पूरी स्कूल बिल्डिंग को सुधार दिया गया है। और जो वहाँ का जो टूटे फूटे कमरे हैं उसको सुधार दिया गया है। और पेयजल की स्वच्छता की स्थिति भी आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुधार किया है। ये कुछ आपके हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म की पिक्चर्स हैं, दिव्यांग जन के शौचालय की हैं, और जो ये कचरा रखने की जगह है जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उस सब के लिए।
अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था विगत स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रमों में, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च किया था फरवरी 2019 में। और ये जो स्वच्छ विद्यालय झारखंड पुरस्कार है, इसमें भी उन्होंने काफी राशि का आवंटन राज्य स्तर से भी किया है। और कोविड-19 महामारी के दौरान भी झारखंड में स्वच्छ विद्यालय अवार्ड उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहा है। महाराष्ट्र में पेयजल स्वच्छता के आकलन के लिए खासकर इन्होंने आश्रमशाला जो है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और इसकी लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग कर रखी है, ये ऑनलाइन टूल की कारण से, जो कि आपके स्वच्छ विद्यालय के सारे पैरामीटर को कवर करता है। अ, और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले निर्मल विद्यालय पुरस्कार शुरू हुआ था सन 2012 में। और इसका अभी विगत वर्ष में पिछले साल ही इसका डिजिटाइजेशन किया गया है, क्योंकि पहले निर्मल विद्यालय पुरस्कार पश्चिम बंगाल में जो है वो मैनुअल होता था। और एक बात मैं उल्लेखनीय बात आपको बस बताना चाहूंगी, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में निर्मल विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया था, तो उस समय हमारे यूनिसेफ से श्री श्याम दवे जी वहाँ पे वॉश स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने उसमें काफी योगदान किया था। और अभी के समय में वो गुजरात में अपनी मतलब अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास ऐसा व्यक्ति भी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में निर्मल विद्यालय पुरस्कार सबसे पहले देश में सबसे पहले शुरू करवाया था। और गुजरात में होने की वजह से आपका राज्य, मुझे तो लगता है, सबसे अग्रणी ही आना चाहिए उस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में। तो इसी शुभकामना के साथ में मैं अपने प्रेजेंटेशन को, मतलब प्रस्तुतिकरण को, विराम देती हूँ। और आप सभी को, जैसा कि अभी पिछले प्रेजेंटेशन में ही बताया गया था, और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का जो पोर्टल है या मोबाइल ऐप है, उसमें आपको जहां भी प्रश्न आए, कुछ भी आपको इस प्रकार का लगे, तो वो हेल्प डेस्क वगैरह वो सब यूनिसेफ के द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप उसमें कृपया अपने प्रश्नों को जरूर डालिए, और जितनी जल्दी प्रश्नों का आपका निवारण होगा, उतना अच्छा आपका स्कूल का परफॉर्मेंस जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। આભાર મેડમ. આપણા ગુજરાતના સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કારને દિશા નિર્દેશ કરવા માટે અન્ય રાજ્યોની પણ સાથે આપણને ધ્યાન દોર્યું અને માર્ગદર્શન પાઠવ્યું. તો માનનીય મેડમનો સમગ્ર શિક્ષા વતી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હવે વોશ સ્પેશિયાલિસ્ટ યુનિસેફના SN દવે સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તો તેમને પણ વિનંતી કરીએ કે તેઓ આપણને માર્ગદર્શન પાઠવે. મિત્રો જે અત્યારે વીસીમાં જોડાયેલા છો, હજુ 15 મિનિટ વીસીનો સમય ચાલશે, પછી આપણે વીસી પૂર્ણ કરશું, એટલે જોડાઈ રહેવા માટે વિનંતી છે. આપણી ખાસ ભૂમિકા એ બની રહે કે મહત્તમ તમામ શાળાઓ આ યોજનામાં અથવા આ કાર્યક્રમમાં પાર્ટિસિપેટ થાય. આપના દ્વારા પણ BRC ને CRC ને પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે અને પ્રોપર મૂલ્યાંકન થાય. એટલે 3 સ્ટાર 4 સ્ટાર અથવા 5 સ્ટાર જે રેન્ક મળવાનો હોય રેન્ક મળે, પણ આપણે પ્રોપર મૂલ્યાંકન થાય એવું પણ કરીએ. કારણ કે કૃત્રિમ મૂલ્યાંકન કરીએ એવું નહીં થવા દઈએ, પ્રોપર આપણું મૂલ્યાંકન થાય, સાચું મૂલ્યાંકન થાય, એ સાથે આપણે આગળ વધીશું. હવે દવે સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણને માર્ગદર્શન પાઠવે. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर. तो सबसे पहले तो सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा को गुजरात को हमारी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. आपका ये प्लान बनाया है और सबको ओरिएंटेशन आज कनेक्ट किया है. कोई इको आ रहा है क्या? थोड़ा इको आ रहा है? Is it clear better now? जी सर. अच्छा, तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने पूरा ये प्लान बनाया है, स्ट्रेटजी इसका इम्प्लीमेंटेशन का. और जैसा कि हमारी कलीग प्रतिभा ने बहुत अच्छे से पूरा विस्तार में बताया है, पूरे देश में समग्र शिक्षा को कैसे टेकअप किया है स्वच्छ विद्यालय, और कई स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट अवार्ड भी डिक्लेयर किए हैं, और गुजरात भी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है. सो प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने बहुत ही अच्छा रिकैप किया है पूरे अवार्ड का, इंडिकेटर्स का, कैटेगराइजेशन का. सो जैसा कि बताया, गुजरात कंपैरेटिवली बेटर प्रिपेयर्ड है.
इन कई कारणों से, एक तो जैसे कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जब एक चुनौती थी तो उसको अवसर में बदला और पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग सारे टीचर्स का हुआ, वॉश पे भी हुआ और कोविड पे भी हुआ। सो सभी लोगों को कोविड के इंडिकेटर्स और वॉश के इंडिकेटर की जानकारी है, और डेटा अपने आप में अवेलेबल है 4 और 5 स्टार का, जो 2 साल 1.5 साल पहले का। तो उसको अपडेट करके जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और हेडमास्टर्स क्विकली उसको नए कॉन्टेक्स्ट में, नई बेसलाइन पे डाल सकते हैं। सेकेंडली, जो टिप्स आपने दिए फोटोग्राफ और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का, दैट बहुत यूजफुल है, तो उसके हिसाब से लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे। इन एडिशन जो गुजरात में और भी जो काम हुआ, काफी हैंड वॉशिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूनिसेफ ने भी गवर्नमेंट के साथ काम किया है। काफी स्कूलों में कोविड रेस्पॉन्सिव हैंड वॉशिंग स्टेशन लगे हैं। करीब 400 से 500 स्कूलों में यूनिसेफ ने डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट से भी किया है और डोनर्स के इन्वॉल्वमेंट से भी किया है, और ये मैसेज पूरा गया है कि हमें कोविड कंप्लायंस करना है। सारे प्रोटोकॉल कोविड के जो बनाए गए वो सभी स्कूलों में शेयर किए गए। स्कूल रीओपनिंग पे जो काम हुआ उसमें सबका ओरिएंटेशन दोबारा से हुआ। तो कई मायने में जो है गुजरात प्रिपेयर्ड है और अपेक्षा भी है गुजरात से काफी। परंतु जब पहले हमें अच्छा स्कोर मिला था उस समय इतने स्टेट कंपटीशन में नहीं थे। अभी आप देखिए उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल तो पहले से ही था। ये सारे स्टेटों ने काफी काम किया है, काफी इन्वेस्ट किया है। अभी प्रतिभा जी ने बताया 1 लाख करोड़ से ऊपर खर्च किया है कायाकल्प के ऊपर। मैं कहूँगा गुजरात में कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है पहले से और काफी काम भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें जो काम हुआ है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट इज आवर चैलेंज, एंड वी शुड एबल टू डू दिस टाइम विद द एंटायर टीम। यूनिसेफ इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम लोग पूरा कमिटेड हैं और कृति इज देयर विद समग्र शिक्षा। श्रुति बहन इज फुली अवेयर, शी इज देयर फ्रॉम मेनी इयर्स। तो पूरा सिविल कॉन्टेक्स्ट में और MHM, गर्ल्स इंक्लूसिव टॉयलेट्स, ये सारे कंपोनेंट पे पिछले सालों में काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार 35,000 करीब स्कूल रजिस्टर हुए थे और फाइनल सबमिशन 34,000 कुछ हुआ था, करीब 60% का। इस बार हमारा टारगेट जो है, हमको रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 80 to 90% रखना चाहिए। जो 44,000 स्कूल है उनके सबके डेटा हैं, तो 40,000 स्कूल तो कम से कम इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन गैप है उसके ऊपर हम क्विकली कोऑर्डिनेट करके IT से और हमारा जो साला स्वच्छता गुणक है उसको भी उपयोग करें। अगर प्रैक्टिसिंग के लिए डायरेक्ट वेब पोर्टल पे आप उसके बाद एंटर करें, ताकि आप जो है कोई एरर नहीं रहे। तो with that, I would like to extend my sincere thanks to all of you for very excellent participation and getting maximum awards this year. Thank you. આભાર માનનીય દવે સાહેબ. કૃતિબેન ને એક વાતચીત ઉપરની બાકી છે તો વિનંતી કરું કૃતિબેન. Thank you. Thank you प्रतिभा जी and thank you Dave sir for connecting with us और हम सभी को मार्गदर्शन देने का। प्रतिभा मैम ने हमें बहुत ही डिटेल में मानक और मापदंड सारे बता दिए हैं और हमारे स्कूलों को इससे हमें जैसा कि अनिल भाई ने बोला, ना कि सिर्फ हमें कंपटीशन को देखते हुए बल्कि हमारे स्कूल का सही असेसमेंट हो और जो मूल्यांकन है वो सही रूप से हो। हमें अपने स्कूलों की क्या स्टेटस है वो पता चले और हम आगे उस पर और बेहतर काम कर पाए, अपने स्कूलों को और बेहतर करने के लिए और बच्चों के लिए सेफ और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो आज के कार्यशाला में हमने मानक, मापदंड और भाग लेने की प्रक्रिया पूरी सीख ली है और यही आपसे अपेक्षा है कि इसको आप टीचर्स तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। हमारी तरफ से सैटरडे को टेंटेटिवली एक और प्रेजेंटेशन से टीचर्स के लिए किया जाएगा 22 से।
और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि शाला शिक्षा विभाग के साथ हमने किया था जब तो हमारा 98% स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसी प्रकार का हमें इस बार भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना है प्राइवेट स्कूल्स को इंक्लूड करते हुए। हमने एसएसटी में प्राइवेट स्कूल्स तब पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इस बार हमें प्राइवेट स्कूल को पार्टिसिपेट साथ में लेते हुए 90 और 100% तक का ही टारगेट रखना है। साथ ही साथ हमने जो नोडल ऑफिसर्स की बात की है, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आप सभी अपने नंबर्स हमें सेंड कर दें, जिससे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकें और उसमें हम रेगुलर अपडेट डालते रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि उस गूगल शीट में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल दें और हम एक ग्रुप के माध्यम से रेगुलर अपडेट करते रहेंगे और आप सभी तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे और आपकी कोई अगर टेक्निकल डाउट्स है वो भी हम उस ग्रुप पे ले सकते हैं। दूसरा, यदि MIS जो भी हमारा डेटा है, क्लस्टर लेवल डेटा है, ये CTS का डेटा अभी इसमें सबमिट किया गया है। यदि MIS टीम को लगता है कोई क्लस्टर अलग है या कोई स्कूल रह गया है जो उसमें नहीं है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप हम तक MIS टीम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और नेशनल की हेल्पलाइन के साथ साथ हमने स्टेट लेवल हेल्पलाइन भी रखी है, जिससे हम आपको गुजराती में पूरा सहयोग कर सके। तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आप दोनों नोट करके हम तक बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। May I request Pratibha ji to just say hello on camera or introduction? यदि दवे सर और प्रतिभा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार, यदि वो अपना वीडियो ऑन करके हमें अभी गुजरात की टीम के साथ इंट्रोडक्शन हो पाएगा तो दैट वुड बी गुड। Yes, welcome Pratibha. Your mic is mute. नहीं, माइक ऑन है। अच्छा। Yes. So once again, thank you for coming on short notice and giving the entire national perspective and how other states are preparing, what all have been done as a policy and program. It's really wonderful. Thank you. बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू दवे सर। और आज की जो प्रेजेंटेशन है आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी, जिससे आप आगे उन्हें टीचर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आगे BRC CRC और टीचर्स तक वो प्रेजेंटेशन पहुंचा। थैंक यू। अनिल भाई को आगे देते हुए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार माटेनी વીસી લગભગ પૂર્ણતા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પુનઃ આપણે એક વાત દોહરાવું કે શનિવારે અંદાજે સમય હાલ તો 9 વાગ્યાની ગણતરી રાખી છે કે 9 થી 10 9 થી 10:30 1 કલાકથી 1.5 કલાક જેવો સમય લઈ તમામ શાળાઓના આચાર્ય સાહેબ સાથે અને શિક્ષક મિત્રો સાથે વાતચીત થઈ જાય। 100% સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કારમાં તમામ શાળાઓ પાર્ટિસિપેટ થાય એના માટે આપણા શું પ્રયત્ન હોઈ શકે એ દિશામાં આપણે આજની વીસી બાદ વિચારવાનું રહે। પ્રોપર મૂલ્યાંકન થાય એવું કેવા પૂરતું મૂલ્યાંકન થઈ જાય એવું પણ ન બને। ખરેખર જ્યાં સાચું મૂલ્યાંકન થવું હોય ત્યાં કદાચ જતું કરવામાં આવે તો પણ કદાચ એનો રેન્ક ઓછો આવે। એટલે સામાન્ય વસ્તુ જે જોવાની હોય તો ત્યાં પ્રોપર બારીકાઈથી પણ ટીચર અને શાળા પરિવાર જુએ જેથી એમનું સારું રેન્ક આવતું હોય તો આવી શકે। ઘણીવાર જતું કરી દીધું હોય તો એના જે ખરેખર એના ગુણાંક મળવો જોઈએ એ ગુણાંક ન મળે। એટલે પ્રોપર ગુણાંકન થાય એવું પણ આપણે ધ્યાન દઈશું। જરૂર લાગે તો આપણે પણ અંદર વિવિધ જિલ્લામાં તાલુકામાં આપ વીસી કરી શકો છો આપના અનુકૂળ સમય। એટલે પુનઃ આપ સર્વેને શનિવારે જે બાયસેટ યોજાય એમાં પણ આપ પાર્ટિસિપેટ થજો એવી આપની નમ્ર વિનંતી છે। આજના વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત જિલ્લા ઇજનેરશ્રી MIS બ્રાન્ચ અમારી બ્રાન્ચના OIC PEM યુટ્યુબના માધ્યમથી પ્રસારણ નિહાળતા સાથી મિત્રો BRC પોઈન્ટરશ્રીઓ જિલ્લાના અન્ય અધિકારીગણ તેમજ યુનિસેફમાંથી આદરણીય દવે સાહેબ અને પ્રતિભા મેડમ જોડાયા તેઓ તેમજ અત્રેથી સિવિલ શાખામાંથી શ્રુતિબેન વૈભવભાઈ તમામનું આ તબક્કે સમગ્ર શિક્ષા કચેરી વતી આજના વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરી આજની વીસી પૂર્ણ કરીએ છીએ। સાથે મળી સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કારમાં તમામ શાળાઓનો પુરસ્કાર મળે, તમામ શાળાઓ પોતાના સારા રેન્કથી આગળ આવે એ માટે આપણા સૌના સહિયારા પ્રયાસ કરીએ અને આપણા ગુજરાતની આવતીકાલ આપણા બધાના હાથમાં છે તે આવતીકાલને ઉજળી બનાવીએ।
આપણી શાળા ધી બેસ્ટ શાળા, અન્યને પ્રેરણારૂપ શાળા બને એ દિશામાં સાથે મળીને આગળ વધીશું. જરૂર જણાય ત્યાં આપણે વ્યક્તિગત ફોન સંપર્ક કરીને, વોટ્સએપના માધ્યમથી પણ વાતચીત કરીને શિક્ષકની અને આચાર્યશ્રીને શાળા લેવલે કોઈ જ મુશ્કેલી ન પડે એ બાબતની પણ કાળજી રાખીશું. સૌનો આભાર વ્યક્ત કરી કાર્ય